600 of our students from MMP Plus and other mains courses are giving the interview this year. और मेंस का कंटेंट प्रीलिम्स से अलग होता है. एक पेपर है जिसमें आपको एक ब्लैंक पेज पे आंसर लिखना है. That without writing good answers, you cannot become a civil servant. We will ensure that you put your best foot forward. If you are looking to start your UPSC CSC journey early, then Sarthi IAS is announcing its live GS Foundation batch for 2026. This batch is starting from 1st of April. To discuss the features of this batch in detail, I want to invite Dr. Shivin Chaudhary. Thank you, sir, for having me here. Hello, Shivin. So Shivin, first of all ये बात करते हैं लाइव GS फाउंडेशन के लिए. अगर कोई भी स्टूडेंट लाइव GS फाउंडेशन ज्वाइन करता है कहीं पे, तो सारथी IAS ही क्यों चूज करे? सबसे पहले उसकी बात करते हैं. तो why Sarthi IAS? So, sir, Sarthi IAS was built with the vision which had 3 pillars. One was credible faculty. Our team has a combined experience of 4 selections and 14 interviews. सर हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस एग्जाम को क्लियर किया है, जिन्होंने इस एग्जाम में इंटरव्यू दिया है, वही लोग इस एग्जाम के लिए पढ़ाएं. So the students know that they are studying from the best. Right. So the second pillar was quality content. अब just because the faculty is credible does not automatically mean that the content will be great too. But we've proven that also. So in MMP Plus last year, I think we're all very proud to admit this, that 600 people, 600 of our students from MMP Plus and other mains courses are giving the interview this year. That is 20% of all people giving the interview are Sarthi IAS students. And that proves that our content and our faculty does a great job. And lastly, sir, we don't want to stop at content. I think बहुत जगह ये होता है कि बस content पढ़ाया और आगे चल गए. But I think it's our responsibility here to make people good students, not merely teach them good content. Good content तो important है ही, but पढ़ना सीखना भी बहुत important है. And the third pillar, which I think is also very important, is the idea of affordability. Right. We've kept our courses affordable throughout. Right. इस reason से, sir, I think we offer the best solution if someone wants to prepare for this exam. I think one important thing you have mentioned that we will make you a good student. है ना? हैंड होल्डिंग की जाएगी कंप्लीटली, किस तरीके से कंटेंट को एब्जॉर्ब करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे, नॉट जस्ट कि हम क्लास में आके कंटेंट डिलीवर कर देंगे. तो अब अगर हम इस लाइव GS फाउंडेशन की बैच की बात करें तो इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन. अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी जगहों से तो वो भी हम आपको बताएंगे कि व्हाट सारथी IAS इज यूनिकली ऑफरिंग एंड हाउ इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन. कैसे वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक एक स्टेप करके हम बात करते हैं. सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की हम बात तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो वर्ड है वन स्टॉप सॉल्यूशन, दिस इज समथिंग दैट वी केम अप विद. Anybody can copy the words, but I don't think anybody can copy the deliverables that we are offering. Right. One stop solution का एक ही मतलब है कि GS के लिए आपको कुछ और नहीं खरीदना, कहीं और नहीं जाना. If you just follow this, we will ensure that you put your best foot forward. Right. And that is what one stop solution means for us. तो सर हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्टार्टिंग विद प्रीलिम्स फर्स्ट. प्रीलिम्स या फाउंडेशन फेज की बात करते हैं. किसी भी जगह पर अगर आपको एक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले यू वुड वांट टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके बाद यू वुड वांट टू अंडरस्टैंड द मेन फाउंडेशन सब्जेक्ट्स. जैसे यहाँ पर 4 मेन फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमी. तो फर्स्ट फेज में उनके कंटेंट पे फोकस होगा. एंड क्योंकि हम प्रीलिम्स का फाउंडेशन कर रहे हैं तो साथ में विल आल्सो बी डूइंग PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स, और प्रैक्टिस ऑफ MCQs. अब प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो MCQ पेपर होता है प्रीलिम्स का. सो एवरी संडे अ टेस्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. सो लाइव लेक्चर्स, नोट्स एंड टेस्टिंग इन द फर्स्ट फेज. राइट. एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वी विल कंडक्ट लाइव MCQ सॉल्विंग सेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से 4 मंथ्स पहले, है ना. तो देखिए नॉर्मली MCQ किसी भी फाउंडेशन कोर्स में कैसे कवर कराए जाते हैं, टीचर्स क्लास में आएंगे, लेक्चर कंप्लीट करेंगे और 5 MCQ आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे, है ना. आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा. नो, वी विल नॉट फॉलो दिस अप्रोच. हम जनवरी 2026 से लेके मई 2026 तक वी विल कंडक्ट मोर देन 40 लाइव MCQ सॉल्विंग सेशन, जो कि मैं कंडक्ट करूंगा लाइव क्लास में खड़े होकर. जो कंटेंट आपने पढ़ा है उससे 25 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है. तो this is how it is a one stop solution for the prelims. Now coming to the second part, mains examination. Sir, mains में I think एक तो content ही missing है, and that is I think why MMP Plus was so successful, because we came together with a team of very credible people and give the best content for the mains. Sir, I taught GS3 in MMP Plus, and I can say with pride that out of the 20 questions that came in mains 2024, 17 were from my notes. Right. And that is true across the board. Right. तो एक तो we'll give you the best content for mains, और mains का content prelims से अलग होता है, right? वो चीज अलग से पढ़नी पड़ती है. उसके बाद सर आंसर राइटिंग है, विच इज आई थिंक द कोर स्किल इन द मेंस एग्जाम. मेंस में अच्छे करे बिना आप इस एग्जाम में सिलेक्ट हो ही नहीं सकते. अब उसमें भी सर क्या रहता है कि यूजुअली पीपल जैसे अच्छा ये क्वेश्चन है, आंसर लिख के आओ, बट वी हैव चेंज दैट.
तो हमने क्या किया कि मेंस के आंसर राइटिंग में दो चीज़ें हैं। एक तो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो मैं लाइव क्लास में आपके साथ आई डू दिस कोर्स कॉल्ड राइट स्मार्ट विच इज इंक्लूडेड इन दिस फाउंडेशन बैच। मैं आपके साथ क्लास में लाइव जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के आए हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहीं पर। एंड हाउ विल आई डिस्कस दैट, कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, मैं आपको फिर टाइम दूंगा थोड़ा सोचने का, फिर मैं बताऊंगा कि अच्छा मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता, एंड दिस इज द अप्रोच आई वुड हैव फॉलोड, राइट, एंड दिस इज द अप्रोच आई फॉलोड इन माय मेंस फॉर एग्जांपल। और ऐसे करके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो हम करेंगे। सो दिस इज वेयर यू विल लर्न आंसर राइटिंग विद मी। आपको समझ आ जाएगा आंसर कैसे लिखना है, बट अभी आपको प्रैक्टिस नहीं करी है आपने, अभी आपने सिर्फ समझा है। प्रैक्टिस करने के लिए यू विल बी डूइंग लाइव आंसर राइटिंग विद वरुण सर। So after learning the answer writing through the PYQ, you need to practice some new questions, right? वहां पे आपका ब्रेन एक्टिव होगा। तो in the live answer writing session, we will practice new question। हर सेशन में we will have 5 क्वेश्चन। मैं आऊंगा सेशन के अंदर, टाइमर चालू होगा और आप उन 7 मिनट में या 11 मिनट में आंसर लिखेंगे। This is how we will practice more than 300 क्वेश्चन इन लाइव आंसर राइटिंग। और इस पर्टिकुलर बैच में हमने लाइव आंसर राइटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक बार प्रीलिम्स से पहले और एक बार प्रीलिम्स के बाद। ठीक है, तो आप प्रीलिम्स से पहले ही मेंस रेडी हो सकते हैं थ्रू दिस लाइव जीएस फाउंडेशन बैच। वन थिंग आई वुड लाइक टू स्पीक अगेन, दैट हाउ इट इज सब्सक्राइबिंग टू द फिलॉसफी ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप अगर बाकी जगह बैचेस में देखेंगे, लाइव फाउंडेशन में कोई भी मेंस का कंटेंट डेप्थ में नहीं करा रहा है ना। एंड वी विल फॉलो एन लॉजिकल ऑर्डर टू द थिंग्स। ऐसा नहीं होगा कि आपके पहले दूसरे महीने में कोर्स के एथिक्स कवर हो रहा है ना। तो हम एक लॉजिकल ऑर्डर में आपको मेंस का कंटेंट कवर कराएंगे। और आंसर राइटिंग भी अगर आप लाइव फाउंडेशन बैच बाकी जगह देखोगे ना, मैंने खुद ने देखा है क्या कराते हैं आंसर राइटिंग के अंदर। टीचर क्लास में लेक्चर कराएंगे, एक क्वेश्चन आपको लास्ट में दे देंगे, है ना। जब वो थक जाते हैं टीचर, लास्ट में उसी टीचर ने क्वेश्चन दे दिया और बोल देंगे आप घर से लिख लाओ, आप सबमिट कर दो, चेक हो जाएगा। ना आपने कुछ सीखा, ना आप कुछ लिखते, ना उनके ऊपर चेक करने का बर्डन होता है ना। Instead of that, we will be standing with you here. Like Dr. Shivin said, he will be standing with you in Write Smart. I will be standing with you in live answer writing session. So that we will enforce discipline to you कि आप answer writing करें। And sir, answer writing का I think one of the major things is also time management. And वो भी हम यहीं पे ensure करते हैं। सामने टाइमर चलेगा बोर्ड पे कि 8 मिनट में लिखना है तो लिखना है। अब शुरू में आपके पास वो आदत नहीं है, तो शुरू में we'll give you those hints कि अच्छा ये लिखो, ऐसे इंट्रोडक्शन को स्ट्रक्चर करो, ऐसे डायग्राम बनाओ इस क्वेश्चन में, एंड टुवर्ड्स द एंड विल मेक यू कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। सो देन लेट्स कम टू द इंटरव्यू फेज। सो इंटरव्यू में एक तो हाउ टू फिल द फॉर्म, विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल बिकॉज अब एनीवे दैट इज बिन चेंज्ड बाय द यूपीएससी और वो प्रीलिम्स के टाइम पे होने लगा है। एंड ऑल्सो हाउ टू हैंडल द इंटरव्यू। अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ प्रीलिम्स मींस पढ़ लिया एंड यू आर डन। वी आर हियर विद यू टिल द एंड एंड दैट इज व्हाट वन स्टॉप सॉल्यूशन मींस। सो इंटरव्यू के लिए भी कॉन्फिडेंस से बोलना, हाउ टू हैव the idea of thinking on the spot, how to have spontaneity, this is also something we'll teach you here. Right. And along with that, while you are doing all this prelims mains interview preparation, in this preparation a mentor is very important hand holding के लिए। तो mentorship will also be included here. There are 2 options which we will discuss in detail in the later part of this video. One will be group mentorship and other will be one-on-one mentorship that we will discuss later. So now this is how it is a one-stop solution for all of you. Now how we are going to proceed in this course that we want to discuss with you. एक प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया इन द फाउंडेशन कोर्स। यूजुअली फाउंडेशन का प्रिपरेशन आपका 1.5 ईयर का है। अगर आप अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेंस 2026 इज अगस्त 2026, राइट। 1.5 ईयर है। और नॉर्मली स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि एक तो बैचेस में लॉजिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करते टीचर्स, है ना। जैसे बहुत सारे लाइव फाउंडेशन के प्लेसेस पे मैंने ये देखा है कि प्रीलिम्स का फाउंडेशन से पहले दे विल स्टार्ट टीचिंग यू समथिंग अबाउट द मेंस, है ना, जो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम होता है, आप लॉस्ट हो जाते हो बीच में, है ना। आपने 2 महीने पढ़ाई करी, अब आपको ही नहीं पता आपकी किस डायरेक्शन में पढ़ाई जा रही है ना। तो हमने इस पूरे कोर्स को इन सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ फेजेस में डिवाइड किया है। तो हाउ वी हैव डिवाइडेड थिंग्स इन फेजेस दैट डॉक्टर शिविन विल शेयर विद यू। सो द आइडिया इज दैट सबसे पहले एक बेस बनना चाहिए। अगर आपको ये 4 फाउंडेशन सब्जेक्ट्स नहीं आते, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो आप आगे कुछ वैसे ही नहीं समझोगे। सो दैट फर्स्ट फेज इज लाइव लेक्चर्स वेयर वी अंडरस्टैंड द बेस ऑफ दीज 4 सब्जेक्ट्स, वी प्रैक्टिस MCQs, वी अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दिस एग्जाम, वी लुक एट PYQs, हमें समझ आएगा एग्जाम और हमें ये 4 सब्जेक्ट समझ आएंगे। फिर सर सेकंड फेज में हम करेंगे मेंस फाउंडेशन। मेंस इज कंप्लीटली डिफरेंट। आप खुद सोचो, एक एग्जाम में मुझे MCQ सॉल्व करने हैं,
एक एग्जाम में मुझे 3 घंटे का पेपर लिखना है, उनकी प्रिपरेशन सेम कैसे हो सकती है? देयर हैज टू बी अ डिफरेंट अप्रोच टू बी फॉलोड इन बोथ प्लेसेस। सो यहाँ पर जब मेंस फाउंडेशन की बात आएगी तो यहाँ पर हम वो कंटेंट देखेंगे इन डेप्थ जहां एनालिसिस होगा, एंड विल ऑल्सो लुक एट आंसर राइटिंग एंड राइट स्मार्ट एंड लाइव आंसर राइटिंग सेशंस एट दिस टाइम। जब ये हो जाएगा, means answer writing phase and means foundation phase, then we'll go to the interview phase where we'll also understand how to speak clearly, how to express yourself, how to talk about your hobbies, etc etc. तो 4 phases में divided है, and at any time during this course you can come back and look at this process. ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग के बीच में कोई फाउंडेशन का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, फाउंडेशन के बीच में कोई आपको मेंस आंसर राइटिंग कराई जा रही है, नहीं, इट विल बी इन अ प्रॉपर फेज वाइज प्रोसेस, ताकि आप भी उस हिसाब से डेवलप करें जो रिक्वायर्ड है इस एग्जाम के लिए। दिस वन थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू, जो अभी तक हमने कवर नहीं किया इस वीडियो में, व्हाट अबाउट द सीसैट एंड करंट अफेयर? Sir, CSAT and current affairs are both included in this course. आपको like I said, one stop solution, don't have to go anywhere else. CSAT को बिल्कुल हम एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। Right. जैसे पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, CSAT भी एक सब्जेक्ट है। क्वालिफाइंग हो गया तो क्या हो गया, पढ़ना तो उसको भी है। Right. तो CSAT will be treated like a foundation subject, like any other subject is. करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, सर दिस इज ऑल्सो समथिंग वेयर आई थिंक द इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग द बेस्ट जॉब, जहां कहते हैं कि हम डेली करंट अफेयर्स करा देंगे, वीकली करंट अफेयर्स करा देंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज का न्यूज़पेपर जब भी ये वीडियो देख रहे हो उठा के खोल लो, आपको समझ ही नहीं आएगा। करंट न्यूज़पेपर समझने के लिए यू नीड टू नो द बेसिक्स फर्स्ट। राइट। तो हम आपको सारे करंट अफेयर्स कराएंगे बिफोर यू गो टू द एग्जाम। आप करंट अफेयर्स के नोट्स उठा के देख लेना। एक तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं मुदित जैन सर, जिन्होंने इस एग्जाम को 3 बार निकाला है। So you know a credible person is teaching you, and I can guarantee that if you look at our current affairs notes, not even a single article from the Hindu that is relevant for the exam will be missed. Right. But होगा वो तब जब आप पहले बेसिक समझ जाओ। ये नहीं कि मैं आपको फर्स्ट डे पे डेली करंट अफेयर्स पढ़ा दूं, जहां मैं आपको नक्सलिज्म के कोई करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं और मैं आपको स्टैटिक बता ही नहीं रहा हूं। पहले आप पढ़ो व्हाट इज नक्सलिज्म, फिर आप पढ़ो नक्सलिज्म की कोई न्यूज आई है, पहले आप पढ़ो व्हाट इज डीएनए, फिर आप पढ़ो नोबेल प्राइज मिला अच्छा डीएनए में कुछ डिस्कवरी के लिए, राइट? सो इन अ प्रॉपर ऑर्डर। राइट। तो आफ्टर कवरिंग सर्टेन पार्ट ऑफ स्टैटिक, देन करंट अफेयर विल स्टार्ट। नाइस। So now after understanding then how this Live GS Foundation course is a one-stop solution for your UPSC CSC 2026, now let me introduce you all the faculty, कौन-कौन सी faculty क्या-क्या subject cover करने वाली है, that you should also know. As we said कि most credible team, so let's meet this credible team. As you know, So I'll introduce myself, sir. I'm Dr. Shivan. I was All India rank 297 in UPSC CSE 2022 and I was in the Indian Revenue Service. I will be teaching you all the subjects of GS3. So economy, agriculture, science and tech, environment, disaster management and internal security. Along with that, I'll also be doing Write Smart with you, which is PYQ based answer writing. right. So what part I will be covering? I will be covering international relations. And one surprise for all of you, I will also be covering complete GS2 for you in this Live GS Foundation course. Along with that, I will be covering live MCQ solving session, live answer writing and mentoring part I will be taking as well. Now, Mudit Jain sir, ex-IRS, ex-IPS, he will cover ethics, essay and current affair for you. If we talk about the Pallavi ma'am, you all must have seen how wonderfully she is teaching geography on Sarthi's YouTube channel. She has also appeared in UPSC interview thrice and she will be covering geography and mapping for you. So Mudit Gupta sir, more than 9-year experience of teaching within the UPSC CSC. He will be covering polity and CSET for you. Next we have Kaval Baveja sir. He will be covering the whole history part including modern history, ancient, medieval, art and culture. Equal importance will be given to all of these pillars. ठीक है? इसके बाद your chief mentor, especially अगर आप one-on-one mentorship कवर करते हैं, we have Sajal sir with us who has mentored more than 450 successful aspirant in past 3 to 4 years, right? He has also appeared in the UPSC interview thrice. ठीक है? तो UPSC interview selection ये keywords आपको नजर आ रहे होंगे and this must be enough to give you this vibe and understand this thing, how Sarthi's team is most credible, why we are creating a big name in this UPSC CSC preparation. ठीक है? So I think this tells everybody that we have a credible team. 4 selections and 14 interviews are there on this board. तो जो भी आपको पढ़ा रहा है उसको इस एग्जाम को उसने इस एग्जाम को समझा है. They know about the exam and they know what they're talking about. Right. So now you have understood each and everything, and this particular Live GS Foundation course is uniquely placed in context of the whole UPSC CST market. How it is uniquely placed? एक बार ये देखते हैं
कि क्या सारथी है इसका जीएस फाउंडेशन कोर्स आपको यूनिकली प्रोवाइड कर रहा है ना। तो दीज आर द 5 थिंग्स विच वी कैन लिस्ट। फर्स्ट, डेडिकेटेड मेंस कंटेंट, है ना। एट नो प्लेस, even I can guarantee in offline scenario, even in offline scenario, you will not find dedicated mains content within the foundation course. Normally foundation course डिजाइन किस तरीके से किए जा रहे हैं, आप 1.5 साल फाउंडेशन करो, अगले साल मेंस के लिए आना, है ना। तो दिस इज नॉट आवर अप्रोच, वी आर कवरिंग मेंस कंटेंट हियर, जीएस 1, 2, 3, 4 एंड एसए कंटेंट will also be covered. एंड डेफिनेटली आपको इस क्वालिटी का मेंस कंटेंट वैसे भी कहीं नहीं मिलेगा, इवन इन द मेंस प्रोग्राम्स। Right. एंड द आइडिया हियर इज, देखो आपको ये बात रियलाइज करने की जरूरत है, मेंस के लिए पढ़ाना मुश्किल है, राइट। मेंस रिक्वायर्स डेप्थ। एक पेपर है जिसमें आपको एक ब्लैंक पेज पे आंसर लिखना है, तो उसमें बहुत सोचना चाहिए। आई हैव टू रीड अ लॉट, एनी टीचर दैट हैज टू टीच फॉर मेंस हैज टू रीड अ लॉट। एंड आपको भी ये बात अपने जहन में डाल लेनी है दैट विदाउट राइटिंग गुड आंसर्स यू कैन नॉट बिकम अ सिविल सर्वेंट। तो ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। And that brings me to the second point also, which is writing PYQs. PYQ करो या ना करो सर, PYQ टेंशन लेना सबको है ना, कि PYQ की टेंशन ले लो, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। प्रीलिम्स का कोई PYQ मिस नहीं होगा, मेंस के तो सारे PYQ मैं आपको यहाँ खड़े होकर लिखवाऊंगा। द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड एंड आई विल टेल यू हाउ आई वुड हैव रिटन इट, फिर आप उसको लिखो। आप PYQs के थ्रू आंसर राइटिंग सीखो, एंड दैट इज द यूनिक थिंग दैट वी आर ऑफरिंग। राइट। एंड द थर्ड पॉइंट, तो जो भी आपका प्रीलिम्स का कंटेंट है ना, चाहे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इट विल बी टॉट बाय क्रेडिबल फैकल्टी, राइट, द पीपल हु हैव क्रैक्ड द एग्जामिनेशन या फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ठीक है। सो ऑल द कंटेंट विल बी ऑफ द प्रीलिम्स एंड द मेंस एग्जामिनेशन विल बी कवर्ड बाय क्रेडिबल फैकल्टी, राइट। इसके बाद लाइव आंसर राइटिंग सेशन, एज आई सेड कि बाकी जगहों पे आंसर राइटिंग कैसे होती है, लेक्चर हुआ, लास्ट में क्वेश्चन दे दिया, टीचर चला गया, उसने बोला आप लिख के सबमिट कर देना, दिस इज नोन एज आंसर राइटिंग एट रेस्ट ऑफ द प्लेसेस। बट हियर we will have more than, in this particular batch अगर मैं बात करूं, more than 50 live answer writing session divided into 2 part, few before the prelims, few after the prelims। यहाँ पे सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, इवन MCQ सॉल्विंग वी आर डूइंग लाइव विद यू, विच इज ऑल्सो अ वेरी यूनिक थिंग। MCQ सॉल्विंग में भी ये नहीं होगा कि आपको एक असाइनमेंट शीट चाहिए घर पे कर लेना। वरुण सर स्टैंड्स इन द क्लास, और मैं खुद वरुण सर का स्टूडेंट था, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज लाइव MCQ सेशंस आई हैव ऑलवेज क्लियर्ड द प्रीलिम्स विद अ वेरी हाई स्कोर ऑफ मोर देन 110, बिकॉज वहां पर MCQ आते हैं, सर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, डिसिप्लिन इन्फोर्स होता है, टाइम में क्वेश्चन करते हैं, 25 क्वेश्चंस एक बारी में होते हैं, एंड देन सर एक्सप्लेन्स कि ये क्वेश्चन को कैसे करना है। तो चाहे MCQ सॉल्विंग हो या जो आंसर राइटिंग है, जो 2 की स्किल्स हैं, दैट विल इंश्योर दैट यू डू लाइव विद अस। राइट। इवन ड्यूरिंग माय IIT प्रिपरेशन मैंने यही नोटिस किया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर एप्टीट्यूड होता है, Right. तो दैट आई विल टीच यू इन द लाइव MCQ सॉल्विंग सेशन। इसके बाद अफोर्डेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्राइसेस हम बताएंगे, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स जो कि आपको मार्केट में मिल सकता है। यू हैव अंडरस्टूड व्हाट यूनिकली वी आर ऑफरिंग इन दिस लाइव जीएस फाउंडेशन बैच। लेट्स सी कि शेड्यूल कैसे प्रोग्रेस करेगा आप नेक्स्ट 1.5 ईयर के लिए। ईच एंड एवरीथिंग जो हमने अभी तक आपको बताया वो हम कैसे कवर करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द शेड्यूल। तो वी विल स्टार्ट विद ओरिएंटेशन सेशंस। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने बैच स्टार्ट किया, आप आए बैच में और आपने बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम फर्स्ट, राइट। तो सबसे पहले हमने 3 ओरिएंटेशन सेशंस रखे हैं। द फर्स्ट वन आई विल बी टेकिंग ऑन 1st April, द सेकंड वन बाय वरुण सर ऑन 3rd April, एंड द थर्ड वन बाय मुदित सर ऑन 4th April। इन ओरिएंटेशन सेशंस में we'll understand the exam first, we'll look at previous year questions, we'll look at patterns, हम 1-2 लोगों की मार्कशीट देखेंगे, हम ऑप्शनल की बात करेंगे। ये सारी बातें करने के बाद once we've understood how the exam works, then we'll go on to the schedule. So the schedule looks something like this. We'll start in April with our orientation sessions, then we'll start with the first phase. अब जैसे मैंने आपको कहा कि हमें सबसे पहले फाउंडेशन सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, so from April to somewhat till September, our idea will be to cover the 4 foundation subjects, which are firstly polity, then geography, then economy, then modern history. अब आप सितंबर में कहाँ पहुंचे हो, आपको एक बेसिक्स आ गए हैं, आपने बेसिक्स इस एग्जाम के जो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं वो कर लिए हैं। नाउ वी टेक यू टू द मेंस फेज। सो फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं, इन 3-4 महीनों में we'll be mainly covering everything in the mains, GS1, GS2, GS3, GS4, essay, along with write smart and live answer writing. So this is that time when we understand the mains, and यहाँ हम कहेंगे कि हाँ हमारा majorly syllabus पूरा हो गया है। Right. Then we'll come to the third phase. अब जनवरी 2026 आ गया है, अब आपका प्रीलिम्स आने वाला है, राइट। नाउ यू नो द प्रीलिम्स इज इन फ्रंट ऑफ यू, और आपको ऑब्वियसली थोड़ी टेंशन होने लगेगी कि 5 महीने में मेरा प्रीलिम्स है। यहां पर हम करेंगे एंशिएंट मेडिवल, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट,
3 मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट्स ऑफ प्रीलिम्स। आप अगर अपने आसपास किसी को जानते हैं जिनका प्रीलिम्स ना हुआ हो, I will guarantee that they have not put in enough time for these subjects. This is also something which most foundation courses are missing out on. तो जान के इनके लिए यहाँ पे डेडिकेटेड टाइम रखा है कि प्रीलिम्स में जिन चीजों से मार्क्स आते हैं वो आप प्रीलिम्स के पास पढ़ो, एंड एट दिस टाइम यू विल बी स्टडीइंग करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स यहीं पे क्यों है यार? जब मुझे पहले सारा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन समझ आ गया, मुझे यहाँ पर मैंने गवर्नेंस पढ़ा, साइंस एंड टेक पढ़ा, मैंने एसए पढ़ा, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा, मुझे समझ आया इंटरनल सिक्योरिटी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हो क्या रहा है, तब तो मैं न्यूज़पेपर कवर करूंगा। कवर करंट अफेयर्स सारा होगा। Every single relevant article that is important for you will be covered, but it will be covered here when you understand everything. तो अब हम प्रीलिम्स फेज में आ गए हैं वापस से। जैन फेब मार्च में we'll cover some subjects and current affairs। जो लास्ट के 2 महीने बचेंगे प्रीलिम्स से पहले, we are not going to abandon you there कि अब 2 महीने खुद से पढ़ लो। Here we'll have guidance sessions and live MCQ solving कि आपकी MCQ की प्रैक्टिस भी यहाँ पर होती रहे। Then you give your prelims regardless of whether you clear the prelims or not। अगर आप obviously I would want that all of you make it through the prelims and you are giving the mains, but ये फिर मेंस का टाइम है। अगस्त में 2026 का मेंस होगा, आपका प्रीलिम्स हो या ना हो, we'll give you this time with again live answer writing sessions। दोबारा हम कंडक्ट करेंगे। आप सब कुछ पढ़ चुके हो, आपको कंटेंट सारा आता है, अब आपको मेंस देना है और आपको आंसर राइटिंग करनी है। सो एट दिस टाइम we'll be doing live answer writing sessions again। इसके बाद भी we don't stop here। इसके बाद भी there'll be the interview phase where we have personality development sessions with our team and former bureaucrats, ताकि आपको ये समझ आए कि इंटरव्यू को हैंडल कैसे करना होता है। So when we are saying one stop solution, we mean it, and there's a plan for the entire next 1.5 year based on the phases of this exam and on the basis of the phases that we've told you. Wonderful. So this is how it is a one stop solution for you. Just 3 चीजें मैं यहाँ पे छोटे सी रह गई हैं। एक CSAT हम कब कवर करने वाले हैं? In the month of November, December, we will cover the CSAT foundation. As Dr. Shivin has said previously, it will be treated as one of the subject. Current affair, he has mentioned it will be for 1 year. We will cover from January onwards, but current affair आपको May 2025 से April 2026 तक का कवर किया जाएगा इस पर्टिकुलर कोर्स में। Live MCQ solving session, you will do the revision। जब आप यहाँ पे ancient medieval कर रहे हैं, science and tech कर रहे हैं, environment कर रहे हैं, आप अपने बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे जो हमने यहाँ पे कवर किया है, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। जब आप उसका रिवीजन कर रहे होंगे, उसके साथ साथ वी विल हैव लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन ऑन दोस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज वेल, है ना। तो फाउंडेशन भी कवर हो रहा है, मेंस भी कवर हो रहा है, आंसर राइटिंग भी हो रही है, प्रीलिम्स रिवीजन भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो रहा है। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड विद इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। So one stop solution, don't need to go anywhere else whatsoever। राइट। सो नाउ यहाँ पे आप सैंपल नोट्स भी देख सकते हैं विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो देखिए सैंपल नोट्स में मैं आपको अलग अलग टाइप के नोट्स दिखाता हूँ। फर्स्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं जो डिटेल पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इन डिटेल पीडीएफ नोट्स को आपको समराइज भी करना पड़ता है, तो समराइज करने के लिए वी विल प्रोवाइड यू माइंड मैप। तो यहाँ पे आपका एक काम कम हो गया। जिस काम में नॉर्मली लोग 1 से 1.5 साल लगा दे रहे हैं, हम आप यहाँ पे आपको माइंड मैप बना के दे रहे हैं, एंड समवेयर हम आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, सो दैट आप इफेक्टिवली एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज भी कर पाओ। ठीक है। नाउ दीज आर द वंडरफुल फीडबैक। व्हेन आई सी ऑल दीज फीडबैक आई फील ग्रेट कि पिछले 1 साल में हमने जितनी भी मेहनत करी उसका ये रिवॉर्ड है ना। जितने भी लाइव जीएस फाउंडेशन हमने अभी तक कवर किए हैं, वंडरफुल फीडबैक वी हैव रिसीव्ड, लॉट ऑफ सच फीडबैक यू कैन फाइंड एट वैरायटी ऑफ प्लेसेस। ठीक है। Now, if we talk about the course fee, please listen to me carefully, है ना। इस चीज को बिल्कुल क्लियरली समझते हैं। We are offering you 2 options। One is जो सारथी आईएएस ऑलरेडी लाइव जीएस फाउंडेशन कर रहा है, उसका कॉस्ट सेम है। इट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग, ऑल द फीचर ऑफ जीएस फाउंडेशन, प्लस जैसे कि हम जूम पे मेंटरशिप करते हैं, ग्रुप मेंटरशिप सेशन, दैट वी आर ऑफरिंग यू एट द सेम कॉस्ट। देयर इज नो प्राइस इंक्रीज व्हाटसोएवर, है ना। जो अफोर्डेबिलिटी का मिशन है, वी आर स्टिकिंग टू इट, राइट। इसके साथ साथ क्योंकि हमने जितने भी अभी तक बैचेस रन करे हैं लाइव जीएस फाउंडेशन के, उसमें कुछ स्टूडेंट का क्वेरी आया पिछले बैचेस में दैट सर प्लीज अगर आप हमें एक 1-on-1 मेंटर भी प्रोवाइड कर पाएं, एक डेडिकेटेड मेंटर जिनसे हम कुछ पर्सनल चीजें भी शेयर कर पाए, है ना। तो उसके लिए सारथी आईएएस इज ऑफरिंग यू फाउंडेशन प्लस विच इज 30,000 इंक्लूसिंग ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे 1-on-1 मेंटरशिप होगा। ठीक है। तो आपको एक डेडिकेटेड मेंटर मिलेगा। कैसे होगा ये? तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, पहले ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। These are the 2 ऑप्शन, फाउंडेशन, फाउंडेशन प्लस। ये सेम प्रोग्राम है जो सारथी आईएएस रन कर रहे हैं पिछले 1 ईयर से, है ना। फाउंडेशन के और फाउंडेशन प्लस के फीचर सेम है, एक्सेप्ट जस्ट वन थिंग। व्हाट इज? यहाँ पे ग्रुप मेंटरशिप है जो कि सारथी आईएएस अभी तक रन करता आया है,
एंड यहाँ पे 1-on-1 मेंटरशिप सपोर्ट है, जो कि पिछले कुछ टाइम में स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया हमें, तो हमने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, सो थोड़ा सा इसको और बता देता हूं मैं, हाउ दिस 1-on-1 मेंटरशिप विल टेक प्लेस। तो देखिए, डेडिकेटेड मेंटर होंगे जो आपका स्टडी प्लान बनाएंगे। समटाइम्स बैकलॉग भी क्रिएट हो जाता है, उस बैकलॉग के लिए कई बार आप एक डेडिकेटेड मेंटर चाहते हैं जो आपका रिवाइज प्लान बनाए और आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करे। आप उससे वीकली कनेक्ट भी कर सकते हैं, आपके पास डायरेक्ट सपोर्ट होगा उस मेंटर से डिस्कशन करने का। प्लस कई बार ऐसी कुछ पर्सनल चैलेंजेस भी आप अपनी प्रिपरेशन में फेस करते हैं जो आप मेंटर से 1-on-1 डिस्कस करना चाहते हैं, दैट यू कैन डू हियर एज वेल। ठीक है, चलिए डन। सो we have explained you each and everything regarding this live GS Foundation batch. if अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, आई एम श्योर दैट द वे जिस तरीके से हमने अभी तक मेंस प्रिपरेशन को रिवॉल्यूशनाइज किया है यूपीएससी सीएसई इकोसिस्टम में, अब ये जो स्टार्ट वाला फेज होता है किसी की भी प्रिपरेशन का, फाउंडेशन कोर्स है ना, वी हैव मेड दिस प्लान कि वी विल रिवॉल्यूशनाइज दिस एज वेल। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन दिस नंबर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वी आर स्टार्टिंग ऑन 1st of April। All right, thank you very much, all the best, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।